Good morning. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Today is very, very special day. Do you know today is two special birthday. One is Holy Spirit birthday and another is the church birthday. आज पवित्र आत्मा का जन्मदिन भी है, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो, और चर्च का भी जन्मदिन है. आज के दिन हिस्ट्री चेंज हो गई. वेटिंग टाइम इज ओवर नाउ. अपर रूम में जो 10 दिन से इंतजारी चल रही थी वो टाइम पूरा हो गया. थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, द गॉड हैज केम ऑन अर्थ फॉर एवर एंड एवर. सो रिजॉइस एंड वेलकम द होली स्पिरिट. ऐसा नहीं कि वो आज के दिन यहाँ आ रहा है लेकिन टाइम टेबल के अनुसार, कैलेंडर ईयर के अनुसार, 2020 के अनुसार वो आज का दिन है 31 मई 2020, जो हिस्ट्री के अनुसार बताता है कि आज के दिन पवित्र आत्मा आया. सो वेलकम होली स्पिरिट एंड गिव क्लैप ऑफरिंग टू हिम as never before. Okay, give clap offering to him and welcome him with joyful heart, with full of your heart, with a smile on your face. Would you like to welcome him? आइए हम उसका स्वागत करें. Welcome Holy Spirit, we are in your presence. Fill us with your power, live inside of us. Shall we stand? एकता का तीसरा व्यक्ति का हम स्वागत कर रहे हैं. आइए अपने स्थानों पर खड़े हों और फिर उसका हम स्वागत करें. When you say welcome, जब आप उसको कहते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं, he will activate. He is already here. ऐसा नहीं है कि वो अब ऊपर से आएगा. He is already here. But when you say welcome, then he is activate. Okay? So come together, all together in a one family we will welcome. Welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Oh, welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Welcome Holy Spirit. I am in your presence. Fill me with your power. Live inside of me. All together as a family. Welcome Holy Spirit. I am in your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Last time. Welcome Holy Spirit. I am in your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. I welcome you. Thank you so much. You are the wonder of God. We honor you, we praise you. Thank you, Lord. We submit ourselves into your authority, Holy Ghost. Thank you. Amen. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Abba Father, we love you and praise you. We thank you. We come to you in the name of the Lord Jesus Christ, the name above all name. Thank you, Father, for your mercy. Thank you for loving us. Thank you for your compassion. Thank you for your mercy. Thank you for this special day you have given to us. Thank you for this beautiful day. Thank you, Lord. We will rejoice in it.
Thank you, Lord. We all gather here, Lord. We come to you to listen your voice, Lord, to listen your word, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you so much. Now, Father, speak to us, Lord. Speak to us, Daddy, and we will hear your sweet voice. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, I commit myself 100% into your hand. Thank you. And now you speak through me, Lord. Holy Spirit, you take complete control upon me and let thy will be done. Let thy will be done. In Jesus' glorious name we ask. Amen. 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 सो प्रभु का धन्यवाद हो। इतने दिनों से हम लोग 5 अप्रैल से हम लोग परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं और प्रभु ने हम लोगों को बहुत आशीषित किया है। कई चीजों में हमारे अंदर बड़ा बदलाव भी पैदा किया। इनफैक्ट लॉकडाउन जो हुआ है वो हमारे लिए आशीष का कारण बन गया है। जो हम लोग जो परमेश्वर से दूर थे उसके करीब आ गए। पिछले 10 दिन से मैं आपको प्रेयर के ऊपर टीचिंग दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको उसके द्वारा आशीष मिली होगी। प्रार्थना में एक परिवर्तन हुआ होगा, है ना। आपके जीवन में प्रार्थना का एक प्रकाशन आया होगा। आपकी इच्छा पैदा हो रही होगी कि हम उसके प्रार्थना में और भी समय व्यतीत करें। दरअसल ये 10 दिन, आज से 10 दिन पहले यानी 21 तारीख को जो स्वर्गारोहण था, उस दिन से प्रेरित लोग ऊपर वाली कोठरी में बैठे हुए एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे हुए थे। पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में डाला था कि सबको पवित्र प्रार्थना के बारे में बोल, तो इसलिए मैंने आप लोग को प्रेयर पर टीचिंग दिया था। मैं उम्मीद करता हूं उससे आपने काफी कुछ सीखा होगा, आपके प्रार्थना के जीवन में बदलाव आया होगा और आपने प्रार्थना एक नए तरीके से स्टार्ट की होगी। आमीन। तो सब बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो मैं आज का संदेश जो पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की है, मैं आपको एक कहानी के रूप में उसे सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने इसको पालन भी किया होगा। आज मैं एक कहानी के रूप में इस बात को बताना चाहता हूं। उसकी वजह है कि आज जो दिन है वो पवित्र आत्मा का दिन है। होली स्पिरिट आज के दिन तीसरे स्वर्ग से हमेशा के लिए धरती पर उतर आया था। और पवित्र आत्मा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो उस पर हम टीच करें, प्रीच करें। ही इज ए पर्सन। उसको एक व्यक्ति के रूप में ही जानना होगा और सही माने में पवित्र आत्मा को ही अपने आप को आप पर प्रकट करना पड़ेगा, तभी आप उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सारी बातें मैं कहानी के रूप में इसलिए भी कहना चाह रहा हूं ताकि जो नए लोग हैं उनकी भी बात सारी समझ में आ जाए। और सारी बातें मैं फिर से एकत्रित करता हूं, नए सिरे से, शुरुआत से हम लेकर चलेंगे ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। आर यू रेडी फॉर दैट? प्रभु जी मुझे अनुग्रह दें कि मैं उस बात को कह सकूं। सो आइए हम उस कहानी को सुनते हैं जो 100% बाइबल पर बेस्ड है। आमीन। जब मैं ये कहानी आपको बोलूं तो आप अपने माइंड में चित्र बनाएं, कल्पना करें, पिक्चर आपके दिमाग में चलनी चाहिए जैसे चलचित्र होता है। मेरे शब्द होंगे, आप उसको पिक्चराइज करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कहानी की शुरुआत मैं इस प्रकार करता हूं। स्वर्ग में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी इज देयर, वहां पर है। और एक दिन राउंड टेबल पे पिता बैठा है, पवित्र आत्मा बैठा है और तीसरी चेयर पे बेटा, लेकिन बेटा उस कुर्सी पे नहीं है। और पिता गमगीन मुद्रा में बैठा होता है, जैसे हमारी भाषा में कहूं तो टेंशन में, जबकि ये इसका नेचर नहीं है, लेकिन वो उदास गमगीन अवस्था में बहुत कुछ सोच रहा होता है। और जब ये सारी बातें वो सोच रहा होता है तो सब कुछ ऐसे जैसे कि हम कैसेट को रिवाइंड करते हैं, वो सारी बातें उसके दिल दिमाग में आ रही हैं और वो फिर सारी बातों को रिकलेक्ट करता है।
और वो सोचता है पिता कि किस प्रकार मैंने एक अदृश्य संसार को बनाया, अनसीन वर्ल्ड जिसे स्वर्ग कहते हैं, और फिर किस प्रकार मैंने स्वर्ग की सेना बना दी, 3 भागों में उन्हें बांट दिया, एक का लीडर गिब्रायल, एक का लीडर माइकल, एक का लूसीफर, और मेरे सामने जो सेक्शन था लूसीफर एंड पार्टी मेरी स्तुति और आराधना में लीन रहती थी। और फिर उसे सारी बातें याद आई, किस प्रकार लूसीफर के हृदय में घमंड आने लगा और मैंने किस प्रकार उसे नीचे फेंक दिया। लूसीफर अपनी 1/3 स्वर्ग की सेना के साथ नीचे चला आया और पिता के सामने का वो सेक्शन खाली हो गया। फिर पिता ने एक दिन बातचीत की आपस में, यार आओ चलो हम लोग मनुष्य को बनाएं। और फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने मिलकर आदम की सृष्टि करने का प्लान कर लिया कि हम आदम को अपनी समानता समरूपता में बनाएंगे। और तीसरे स्वर्ग से पिता इस धरती पर आता है, इस धरती की डस्ट में आकर घुटने टेकता है। आपको मालूम, मेरा और आपका पिता जो यहोवा परमेश्वर है, कभी भी किसी के आगे नहीं झुका। लेकिन जब मनुष्य को बनाने की बात आई, तब यहोवा पिता इस धरती पर आकर घुटने टेक दिए। मनुष्य के सामने वो झुका और उसने मट्टी को अपने हाथों से लिया और घुटने टेक कर वहां पर आदम का पुतला तैयार किया। फिर उसने होली स्पिरिट की ओर इशारा किया होगा और अपने जीवन का साहस उसके अंदर डाला, जो वो खुद था, जो उसका जीवन था, परमेश्वर का वाला जीवन उस पुतले के अंदर चला गया। और फिर वो आदम जीवित प्राणी बन गया और फिर परमेश्वर पिता उससे संगति करने लगा, फेलोशिप स्टार्ट हो गई। ठंडे वक्त में यहोवा आता और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और शैतान ने जब ये देखा, उस लूसीफर ने जब ये देखा कि परमेश्वर ने मिट्टी से अपनी रचना तैयार कर ली है और वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, तो शैतान के दिल में आ गया कि मैं इस इमेज को, इस लाइकनेस को बर्बाद करूंगा, कुछ क्या करूं कि इसका रिश्ता तोड़वा दूं। और फिर आप सब जानते हैं कि किस प्रकार आदम से उसने आज्ञा उल्लंघन करवाई, और जब आज्ञा उल्लंघन हो गई तब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का जीवन आदम में से निकल गया। आदम फ्लैश और सोल में जीवित बना रहा और उस दिन से आदम के अंदर बुराई ही बुराई जन्म लेने लगी, यहां तक कि कैन ने अपने भाई की हत्या कर दी। परमेश्वर इन सब बातों को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसे याद आने लगा कैसे मैंने अपने हाथों से इस मिट्टी को रचे, दही की तरह जमाया, इसकी नसें बनाई, मांस लगाया, हड्डियां बनाई, अपना सांस डाला और ये सब बुराई ही बुराई करने लग गए। परमेश्वर ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, वह मन में अति खेदित हुआ। God grieved in his heart. God was so sorry in his heart. और ये सब बातें सोच सोच के वो दुखी हो रहा था, उदास था, उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। जब वो इस प्रकार की मुद्रा में था, तब अचानक उसके बेटे की एंट्री होती है और वो आता है, बाप को उदास देखता है, बाप के करीब आता है, धीरे से कुर्सी खिसका के बैठ जाता है और फिर पिता से कहता है, पिता क्या बात, आज आप बहुत उदास दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? पिता इग्नोर करता है
और पिता कहता नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन बेटे ने जब बाप का चेहरा देखा तो वो जानता था अपने पिता को कि मेरा पिता हमेशा मुस्कुराता है, हमेशा हंसता रहता है, आनंदित रहता है, आज क्या बात है। उसे रहा नहीं गया, उसने कुर्सी पिता के करीब खिसका ली, कुर्सी पे बैठ गया, पिता के हाथों को अपने हाथ में लिया और पिता से जिद करने लगा और पिता से कहने लगा, नहीं डैडी, मुझे मालूम है कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है, मैं आपका बेटा हूं, आई लव यू डैडी, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई वांट टू नो। बेटे की जिद के सामने बाप ने अपनी खामोशी तोड़ी और बाप ने कहा, बेटा, याद है हमने अपने हाथों से जिस आदम की रचना की, जिस मानव जाति को बनाया, आज वो मानव जाति मुझसे दूर हो गई है और सब के सब नरक की राह पे जा रहे हैं, सब नाश हो जाएंगे। तो बेटा उत्साहित हो गया, मुस्कुराया और बेटे ने कहा, अरे पापा, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सिद्ध है, परफेक्ट हैं, यू कैन डू एनीथिंग, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए क्या काम मुश्किल है। तो पिता ने कहा, नहीं बेटे, ये ऐसा नहीं है, मैं सच्चा न्यायी हूं, मैं अपने ही बनाए हुए नियम सिद्धांत को तोड़ नहीं सकता। आई एम परफेक्ट, आई एम गॉड, आई एम सर्वशक्तिमान, मैं सब कुछ कर सकता हूं, सच है, लेकिन मैं अपने ही सिद्धांत के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो बेटा सीरियस हो गया। फिर बेटे ने बाप से पूछा, पापा, कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका आपकी नजर में होगा। सब उस हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। होली स्पिरिट भी चुप, बेटा भी चुप, बाप भी चुप। और तब बाप ने अपनी खामोशी तोड़ी और बाप ने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटे, एक तरीका है। बेटा मुस्कुराया और बेटे ने कहा, यस डैडी, टेल मी, कौन सा तरीका है। लेकिन बाप बहुत सीरियस हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटे, अगर मुझे ये आदम जाति को बचाना है, मानव जाति को बचाना है, मैनकाइंड्स को सेव करना है, तो केवल एक तरीका है और वो है तू। उसने उंगली बेटे की ओर उठाई। उसने कहा, अगर मुझे मानव जाति को बचाना है तो मुझे तुझे खोना पड़ेगा, तेरी कीमत पर मैं मानव जाति को बचा सकता हूं। अब बेटा भी सीरियस हो गया। फिर साइलेंट माहौल बन गया और इस बार खामोशी बेटे ने तोड़ी और बेटे ने बाप से कहा, पापा। वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने कहा, पापा, तेरी खुशी के लिए, तेरे आनंद के लिए मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, टेल मी, मुझे क्या करना होगा, मुझे बताइए। पापा ने इशारा किया, बेटे को बैठने के लिए कहा। तो बाप, बेटे और होली स्पिरिट तीनों ने वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और वहां पर फिर एक मिशन डिस्कस किया गया और उस मिशन को सारा प्लान आपस में डिस्कस हो गया। जब सारा प्लान डिस्कस हो गया तो बाप ने उसमें बता दिया था कि बेटे, तुझे मैं धरती पर भेजूंगा, तू धरती पर जाएगा, किस प्रकार सारे मानव जाति के गुनाहों का बोझ तू अपने ऊपर लेगा और तू पाप बनेगा, पाप का दंड तुझे चुकता करना पड़ेगा और जितने लोगों को शैतान ने बंदी बनाया है उस नरक में जाकर उस बंदियों को रिहाई करनी होगी, मौत को मौत देनी होगी। और सुन, मैं फिर से तुझे जब सारा दंड चुकता हो जाएगा मैं तुझे फिर से जिंदा कर दूंगा। ये मिशन है, इस मिशन के तहत मैं तुझे इस धरती पर भेजूंगा, तुझे जाना होगा। एनी क्वेश्चन? जब बाप ने कहा कोई क्वेश्चन, तो बेटा धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, पापा। उसने होली स्पिरिट की ओर देखा और उसने कहा, पापा, मैं चाहता हूं होली स्पिरिट को मेरे साथ भेजो। फादर सीरियस हो गए और पिता ने कहा, बेटे, शुरू में तू अकेला जाएगा, लेकिन राइट टाइम पर
उसने उंगली पवित्र आत्मा की ओर उठा के हुए कहा, मैं इस होली स्पिरिट को, पिता ने कह दिया, राइट टाइम पर मैं होली स्पिरिट को तेरे पास भेजूंगा। मिशन सारा डिस्कस हो गया। बेटे ने कहा, ओके डैडी टेल मी, मुझे कब जाना है। पापा ने कहा, ओके आई विल टेल यू। अब पिता को एक ऐसी कुंवारी लड़की की जरूरत थी जो उसका भय मानती हो, जो उसकी हाँ में हाँ करे, जो नम्र और दीन हो। जब पिता ने इस धरती पर नजर दौड़ाई, उसे मरियम, एली की बेटी मिल गई, जिसका नाम मरियम, और वो उस लड़की में तीनों खासियत थी कि वो कुंवारी थी, नम्र और दीन थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी, उसकी हाँ में हाँ करने वाली थी। पिता ने गब्राएल स्वर्गदूत को भेज दिया, जाओ और जाकर उस कुंवारी लड़की को संदेश दो। और फिर स्वर्गदूत गब्राएल आता है कुंवारी के पास, मरियम के पास, और उससे आकर अभिवादन करता है। और स्वर्गदूत कहता है कि आनंद और जय तेरी है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो लड़की मरियम भयभीत हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। वो डर जाती है। तो स्वर्गदूत कहता है, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र जन्म लेगा। तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, उसका नाम तो यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे। उस मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूं। स्वर्गदूत ने इसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु के प्रिय लोगों, जब टाइम पूरा हो गया, गब्राएल ने ये मैसेज दे दिया, होली स्पिरिट ने जाकर मरियम की गर्भ को कंट्रोल किया, और वो बालक यीशु वहां जन्मने लगा। और समय का चक्र जब पूरा हुआ, वो बालक पैदा हो गया। अजीजों, उस बालक का नाम यीशु रख दिया गया। यीशु बड़ा होने लगा। धन्यवाद हो, परमेश्वर ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो मिशन डिस्कस किया था, वो प्रारंभ हो चुका था, और यीशु मसीह बड़े होने लगे। केवल मरियम जानती थी कि ये बालक कौन है, या फिर मरियम का पति जानता था, यूसुफ, कि ये बालक कौन है। क्योंकि जब यूसुफ को मालूम पड़ा था कि शादी से पहले मंगेतर गर्भवती है, उसको छोड़ना चाहता था, तो फिर स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने यूसुफ को सब बातें बताई कि इसके घर में जो है वो कौन है, किसके द्वारा जन्म लिया है। सो यूसुफ और मरियम को मालूम था हकीकत में ये जो बालक है ये कौन है, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, जगत का उद्धार करता है। और ये बालक बड़ा होने लगा, जहां कहीं जाता माँ बाप के साथ जाता था, चाहे सोशली चाहे स्पिरिचुअली। 12 साल की उम्र में भी वो अपनी समझ से बढ़कर बातें करने लगा। वो आत्मिक बातें करता था, स्वर्ग की बातें करता था, लोगों की समझ में नहीं आता था, लोग हैरान हो जाते थे। समय का चक्र चल रहा था, यूसुफ बढ़ई था, और यीशु अपने पिता के बढ़ई के काम में सहायता करते थे, लेकिन अंदर से वो मिशन को जान रहे थे, उनको इनवर्ड नॉलेज थी, अंदर से वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो होली स्पिरिट आए। जब उनकी उम्र 30 साल की हुई, बाइबल कहती है लूका 3 अध्याय की 21 और 22 पद के अनुसार, एक उस दिन यीशु मसीह घर से बाहर निकले और उनके कदम चलते हुए यरदन नदी के पास पहुंच गए। यरदन नदी के पास
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले खड़े हुए थे और यीशु ने जाकर उनसे बपतिस्मा लिया। और यीशु को जब पानी में डुबकी लगाई गई, जब उन्होंने डुबकी ली और बाहर पानी से बाहर निकल के आए, बाइबल कहती है आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और उसके कांधे पर आकर ठहर गया। और धीरे से यीशु के कान में उसने कहा, मैं आ गया हूं। यीशु मसीह अंदर से उत्साहित हो गए। यीशु इसी बात का तो इंतजार कर रहे थे। लूका 4 शुरू हो गया। बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा जो उनके अंदर आ गया था, अब यीशु और आत्मा दोनों एक हो चुके थे और पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह जंगल के अंदर चले गए। पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया। वहां 40 दिन तक उपवास प्रार्थना के साथ उनकी ट्रेनिंग होती रही और हर बात को पवित्र आत्मा उस मिशन के लिए उन्हें तैयार करता रहा। शैतान ने चूंकि उस आवाज को सुन लिया था जो पिता ने घोषणा की थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, तो शैतान उस बेटे को खत्म करने की इच्छा से जंगल में उसके पास जाता है। लेकिन यीशु मसीह की परीक्षा जब वो करता है तो सारी परीक्षाओं में यीशु मसीह उत्तीर्ण हो जाते हैं। तब शैतान थोड़ी देर के लिए उसके पास से चला जाता है। बाइबल कहती है लूका 4 अध्याय 14 पद के अनुसार यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को वापस लौटता है। जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर कर बाहर आता है तो उसकी चर्चा गांव-गांव देश-देश में फैलने लगती है। वो उपदेश देने लगता है, लोग उसकी बढ़ाई करने लगते हैं। बाइबल कहती है कि 18वें वचन में कि लोगों ने उसे आराधनालय में बुलाया और उसको पुलपिट दिया गया और यीशु मसीह वहां पर स्टार्ट करते हैं और कहना शुरू करते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, कुचले हुए को छुड़ाए जाने का, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का मैं प्रचार करूं। उन्होंने अपना सारा मिशन डिक्लेयर कर दिया और यीशु मसीह 30 साल की उम्र में ये सब प्रारंभ हुआ। 3.5 साल तक जगह जगह जा जाकर पवित्र आत्मा के साथ उसकी एक यूनिटी में सुसमाचार सुनाने लगे। जहां कहीं वो जाते शैतान के राज्य को नाश करते, परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने लगे हर जगह। और उस जमाने के धर्म के अगुए फरीसी सदुकी जब ये सारा कुछ सुनते, देखते, चर्चा फैलती, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे जाती और उन आश्चर्य क्रमों को जो यीशु मसीह करते, उन उपदेशों को जो अधिकार के साथ वो दे रहे थे सुनते, तो उनके अंदर ईर्ष्या और जलन उत्पन्न होने लगी। और यहां तक कि जब उन्होंने मरे हुए को जिंदा किया, लाजर को जिंदा कर दिया, यीशु की चर्चा सब जगह फैलने लगी, तो ये फरीसी और सदुकी कहने लगे कि अरे कुछ तो करो, जमाना उसके पीछे हो लिया है। उन्हें अपना राज्य खतरे में दिखाई देने लगा। दुश्मन और उसकी टीम ने प्लानिंग शुरू कर दी। यीशु जानते थे कि वो समय नजदीक आता जा रहा है और यीशु को पकड़वाने की साजिश रची जाने लगी। एक तरफ यीशु को सब मालूम था कि वो घड़ी नजदीक आती जा रही है, तो जैसे जैसे वो घड़ी नजदीक आने लगी, यीशु मसीह अपनी इस बात को अपने खास टीम के साथ डिस्कस करने लगे, क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरा समय नजदीक आ गया है, अब मैं चला जाऊंगा। लेकिन इस सच्चाई को जाने से पहले वो बता देना चाहते थे। फिर एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को इकट्ठा किया। वो चेलों को अपने पास ले आए और वो फसह से पहले था और यीशु ने उनसे कहा कि देखो, मैंने तुमसे बिल्कुल वैसा ही प्यार किया है जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया है, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा वैसा प्यार रखूंगा। और तब यीशु मसीह ने गुरु होते हुए, उनका अगुवा होते हुए उनके पांव को धोया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, चेलों की समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं कि आप गुरु हो कि हमारे पांव धो रहे हैं। यीशु ने कहा, बाद में तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एक्चुअली आज से मेरी और तुम्हारी अनंत के कार्य में, उस आत्मिक कार्य में
उस हेवनली मिशन के कार्य में मेरा और तुम्हारा साझा होगा। यानी कि अगर मैं तुम्हारे पांव धो रहा हूं तो तुमको मैं इस महान कॉलिंग में बुला रहा हूं। नाउ वी आर पार्टनर, वी आर वर्किंग टुगेदर। जबकि पतरस ने कहा था कि प्रभु नहीं, मैं तुझे अपने पांव धोने नहीं दूंगा। यीशु ने उससे कहा, अगर ऐसा नहीं तो फिर तेरा मेरा कोई साझा नहीं होगा। ठीक है, तेरा मेरा साझा नहीं होगा। तो यीशु ने ऐसा करके उनको उस हेवनली मिशन में एक कर दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। हम सब एक हो जाएंगे। और तब यीशु मसीह ने उनको वहां पर एक नई आज्ञा दे दी। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं। नई आज्ञा ये होगी कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, सेम वैसा प्यार तुम एक दूसरे से करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो जग जान जाएगा कि तुम मेरे चेले हो। फिर यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना करूंगा पिता से, इस कार्य को पूरा करके जब मैं जाऊंगा, पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक भेजेगा, सत्य का आत्मा। वो आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। बस तुम लोग मेरा कहना मानते रहना। इसी से मैं जान जाऊंगा तुम मुझसे प्यार कर रहे हो। अगर मेरे इस कहने में तुम आगे बढ़ने लगे, मुझसे प्यार करने में आगे बढ़ने लगे, तो यही पवित्र आत्मा तुमको एक दिन मेरे से मुलाकात कराएगा। मैं अपने आप को तुम पर प्रकट कर दूंगा। यदि तुम और भी मुझसे प्यार करने लगोगे और भी मेरी आज्ञाकारिता में चलोगे, तो पिता भी अपने आप को प्रकट कर देगा। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम सब एक साथ तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, वास करेंगे, और तुम्हारा शरीर ड्वेलिंग प्लेस बन जाएगा। जब यीशु मसीह ये सारी बातें कह चुके तो उन्होंने कहा, उठो उठो, अब यहाँ से चलो, क्योंकि वो समय नजदीक आ रहा है। चलते चलते यीशु मसीह ने उन्हें शिक्षा दे दी। और ये सारी शिक्षा यीशु मसीह की सारी शिक्षाओं का निचोड़ था। यीशु ने कहा एक ही लाइन में, अबाइड इन मी, अबाइड इन माई लव, अबाइड इन माई वर्ड। यदि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैंने तुमसे जैसा प्यार किया, मैं जैसे पिता के प्रेम में बना हूं, वैसे तुम मेरे प्रेम में बने रहना। और तुम मेरे जैसा प्यार मैंने किया वैसा प्यार आपस में करना। तो हम सब आपस में एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे। और सुनो, हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। मैं तुम्हारा भेजने वाला हूं। तुम जाओगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। और याद रखना, मैं तुम्हें एक बात और समझा देता हूं कि जैसे वो मेरे साथ करने जा रहे हैं, इस हरी डाल के साथ करने जा रहे हैं, जैसे ये संसार विरोधी मेरा विरोध कर रहा है, वैसे ही वे सारे संसारिक लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। ये बात मैं तुम्हें पहले से बताए दे रहा हूं। मेरे नाम के कारण वो तुम्हारे साथ बैर करेंगे। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, और तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ेगा। लेकिन फिक्र नहीं करना, वो जो पवित्र आत्मा आ जाएगा तुम्हारे अंदर होके काम करेगा। मैं इस समय सच सच बता रहा हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदे की बात होगी। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक आएगा नहीं। अगर वो सहायक आ जाएगा तो वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेगा, और वो तुम्हारे साथ मिलकर बड़े बड़े काम करेगा। जो काम मैं कर रहा हूं, मुझसे भी बड़े काम वो करेगा। और सुनो, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के प्रति निरुत्तर करेगा। जब ये सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का मार्ग तुमको बताएगा, वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वरन भविष्य में होने वाली बात को मुझसे लेकर तुम्हें बताएगा, और वो मेरी महिमा करेगा। मैं तुमको बता रहा हूं, पिता तुमसे प्यार करता है, वो खुद ही तुमसे प्यार करता है, क्योंकि पिता को मालूम है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो इसलिए तुम किसी बात की फिक्र नहीं करना। ये सारी बातें बताने के बाद यीशु ने कहा, अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अजीजों, यूहन्ना 17 अध्याय में उन्होंने प्रार्थना प्रारंभ कर दी। ये प्रार्थना यीशु मसीह सिखा नहीं रहे थे कि इस रीति से प्रार्थना करना। नहीं, एक्चुअली यीशु मसीह ये महायाजक की प्रार्थना कर रहे थे। ये प्रार्थना उन्होंने 3 भाग में समाप्त की। पहली 5 आयतें उन्होंने अपने लिए प्रार्थना की, फिर 14 आयतें उन्होंने चेलों के लिए प्रार्थना की, फिर 7 आयतें उन्होंने चेलों के द्वारा जो विश्वासी बनेंगे उनके लिए प्रार्थना की। और इस प्रार्थनाओं का निचोड़ केवल एक था, एंड ये था कि हम सब एक हो जाएं, यूनिटी में आ जाएं। प्रार्थना का अंत ये था कि जैसे
पिता ने मुझसे प्यार किया वैसे मैं उनसे प्यार कर रहा हूं। जैसे मैं पिता में हूं वैसे वो मुझ में रहें। मैं पिता में और पिता मुझ में, तुम मुझ में और मैं तुम में, हम सब एक हो जाएं। जो मेरा है वो तेरा, जो तेरा है सो मेरा। वननेस, यूनिटी में हम लोग आ जाएं। ये सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह ने गत्समनी बाग में जाने से पहले पहले कर ली। और जब ये प्रार्थना कर ली तब यीशु मसीह गत्समनी बाग के अंदर चले गए, जहां वो अक्सर जाते थे, क्योंकि वो जान गए थे अब टाइम आ गया है। और अब यीशु मसीह वहां पर जाकर प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था उस मिशन के तहत कि जैसे ही मैं वो कटोरा लूंगा, जैसे भी मानव जाति के पाप में लूंगा, मैं पाप बनूंगा, वो जो पवित्र आत्मा मेरे साथ है वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं इस धरती पर अकेला रह जाऊंगा, जस्ट लाइक फर्स्ट एडम के हिसाब से। और यीशु मसीह प्रार्थना के द्वारा बल पा रहे थे, आत्मा के द्वारा प्रार्थना में लगे हुए थे। और वो घड़ी आ गई तब यीशु ने प्रार्थना करी। उसने कहा, पिता जैसी तेरी इच्छा है वैसी हो, वैसा ही हो। पिता मेरे नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। और गत्समनी बाग में ये प्रार्थना कर रहे थे, वो घड़ी आ गई। यीशु की टीम का एक मेंबर विरोधियों से मिल गया और उसने आकर यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और यीशु जानते थे जो कुछ हो रहा था। अजीजों, यीशु मसीह को फिर पकड़वा देना था। उन्हें पकड़वाया गया। अब यीशु मसीह को एक कैदी की तरीके से बिहेव किया गया। उनको शारीरिक यातना दी गई, मानसिक यातना दी गई, आत्मिक यातना दी गई। पिता से उनका रिश्ता छूटा। उनको सलीब पर चढ़ाया गया, क्रूस पर। हमारे बीमारी के लिए उन्होंने मार खाई, हमारी तंदुरुस्ती के लिए उन्होंने मार खाई, ताकि हम लोग चंगे रहें। हमारे ऊपर जो पाप की कलंक साया थी उसके लिए उन्होंने अपना लहू बहाना था, उनको बलि चढ़ना था। यीशु जानते थे, उन्हें पूरा भरोसा था पिता पर और पवित्र आत्मा पर कि जब मैं मर जाऊंगा तो पिता जब राइट टाइम पे पवित्र आत्मा को भेजेंगे और पवित्र आत्मा मुझे फिर से जिंदा कर देंगे। यीशु मसीह क्रूस पर सब कुछ सह गए और क्रूस पर उनकी कुर्बानी हो गई। अजीजों, ये मिशन का पार्ट था। और यीशु मसीह की डेड बॉडी को लेकर कब्र में रख दिया गया। यीशु की आत्मा नरक में गई, क्योंकि यीशु पाप बन गया था। ये मिशन का हिस्सा था। नरक का राजा लूसीफर, उसने लोगों को बंदी बना रखा था। यीशु ने वहां जाकर बंदी आत्मा को रिहाई करनी थी और मृत्यु को मृत्यु देनी थी। उत्पत्ति 3:15 की भविष्यवाणी को पूरा करना था। स्त्री के वंश ने शैतान के सर को कुचलना था। और आप सब जानते हो, फिर यीशु मसीह ने डू पे डू युद्ध किया। पहले आदम की उपस्थिति में आकर शैतान के सर को उसने कुचला। सारा दंड जब चुकता हो गया, बंदी आत्माएं जब रिहाई कर दी गई, मृत्यु अधोलोक की कुंजियां जब वापस ले ली गई, और जब पिता ने देखा कि अब सारा दंड चुकता कर दिया गया है, तब पिता के हाथ में जो रिमोट कंट्रोल था, वहां से वो रेज निकलनी थी, अर्थात वो होली स्पिरिट निकलना था। पिता ने होली स्पिरिट को इशारा किया, नाउ यू गो। धरती के टाइम टेबल के अनुसार 3 दिन का समय पूरा हो चुका था और पवित्र आत्मा धरती पर नीचे उतरता है। यीशु मसीह का डेड बॉडी कब्र के अंदर रखी हुई है, पत्थर से सील बंद किया हुआ है। रोमी सल्तनत के सिपाही पहरे पे बैठे हुए हैं और स्वर्ग खुलता है, पवित्र आत्मा धरती पर उतरता है। रोमी सल्तनत के सिपाही गवाह बनते हैं, वो उसे देखते हैं। उनके जीवन में एक अद्भुत गवाही कि स्वर्ग से वाइट अगम्य ज्योति नीचे उतर रही है। उसके पीछे रीजन था कि पत्थर को खिसकाना बहुत जरूरी था, क्योंकि पत्थर अगर खिसकता नहीं तो लोगों के सामने प्रमाण कहां से आता। क्योंकि यीशु तो जिंदा हो जाते, वो बंद पत्थर से, सील बंद पत्थर से भी बाहर आ सकते थे, लेकिन गवाह के रूप में अंदर कौन जाता, वो पत्थर कौन खिसकाता।
तो पवित्र आत्मा ने सबसे पहला काम पत्थर को खिसका दिया, और रोमी सल्तनत के सिपाहियों ने जब ये देख लिया तो वो लोग बेहोश हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा नजारा कभी भी नहीं देखा था। और पवित्र आत्मा ने यीशु के डेड बॉडी को टच किया। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिला दिया, और वो भोर आपके 2020 के हिसाब से 12 अप्रैल संडे का दिन मरियम सुगंधित द्रव्यों को लेकर वहां पहुंचती है, पत्थर को खिसका हुआ देखती है, हैरान हो जाती है। उसने मृतक यीशु को देखने आई थी, जीवित यीशु को प्राप्त करती है और दौड़कर जाती है। वो ये खबर को चेलों को सुनाती है। पतरस दौड़ता हुआ आता है, वो कब्र के अंदर घुस जाता है और आकर देखता है कि वहां डेड बॉडी नहीं है, केवल वो कपड़ा तह किया हुआ रखा हुआ है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं। अजीजों, केवल जी उठते ही नहीं, वो 40 दिन तक जीवित होने का प्रमाण देते रहते हैं। फिर 40वां दिन आता है, आज से 10 दिन पहले, अर्थात 21 मई का दिन आ जाता है, और 21 मई को यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है। आपको याद है, मैंने आपको स्वर्गारोहण दिवस की बधाई दी थी। 10 दिन पहले 21 मई को यीशु मसीह अपने चेलों को सबको इकट्ठा करते हैं और उस पहाड़ी पर आते हैं, और वहां आकर वो अपने चेलों से कुछ अंतिम बात कहते हैं। उन्हें याद दिलाते हैं लूका 3:16 को। याद करो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था कि यीशु पवित्र आत्मा से और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। उन्होंने प्रेरित 1:4 में को याद दिलाया कि पिता की उस आज्ञा को याद रखना, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा के बाट पूरे होने की बाट जोहना। लूका 24:49 पद में यीशु ने कहा था, पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोहना। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता तुमको वो आत्मा जब उड़ेल देगा, तब तक तुम लोग यहीं पर रहना, यहाँ इंतजार करना, यरूशलेम को मत छोड़ना। उन्होंने प्रेरित 1:5 में कहा था, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पा जाओगे। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पा जाओगे। और तुम लोग यरूशलेम को मत छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा की बात जोहना। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो पवित्र आत्मा तुम पर उतारूंगा, तब तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे। ये बात उन्होंने समझाई, और तब प्रेरित 1:8 में उन्होंने अंतिम शब्द बोले, और जब वो शब्द बोल रहे थे, धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगे। वहां लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। यह कहकर वह उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी प्रियो यीशु मसीह बादलों पर ऊपर उठा लिए गए। सब लोग बादल को देख रहे थे। एक टाइम आया जब यीशु मसीह बादल के भी ऊपर चले गए। अब यीशु दिखाई देने बंद हो गए, अब यीशु मसीह नहीं दिख रहे थे, लेकिन लोग फिर भी आकाश की ओर देख रहे थे। बाइबल कहती है कि 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हो गए, और उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु। कौन से यीशु? यही यीशु जो मरकर जिंदा हुए और जीते जी आसमान में उठा लिए गए हैं, तुम्हारे पास स्वर्ग से पर उठाए गए हैं। तुम्हारे जिस रीति से ये स्वर्ग में उठाए गए हैं, उसी रीति से ये तुम्हारे पास फिर वापस आएंगे। और अब यीशु मसीह दिखने बंद हो गए। सब लोग वापस आ गए। उनके दिल में यीशु मसीह के अंतिम शब्द थे, और बाइबल कहती है कि वे सब के सब उस पहाड़ से यरूशलेम को लौटे, जिसमें स्त्रियां भी थीं, माता मरियम भी थीं, और सब एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। इसलिए स्वर्गारोहण के दिन मैंने उस दिन से लेकर कल तक मैं आपको प्रार्थना के बारे में टीचिंग देता रहा। प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे।
और इंतजार करते रहे। 10 दिन अजीजों, 10 दिन इंतजार में, 10 दिन प्रार्थना करते रहे। 10 दिन के बाद 10वां दिन जब आया, यानी आज का दिन जब आ गया, 31 मई आज के कैलेंडर के अनुसार, तब इतिहास बदला। हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तब बाइबिल कहती है, प्रेरित 2 अध्याय 1 से 4 पद में, कि जिस पेंटिकॉस्ट का दिन जब आया, जब पूरे 50 दिन पूरे हो गए, वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे। अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आकर ठहर गईं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित 2 अध्याय 1 से 4 पद में कुछ हुआ अजीजों। 10 दिन इंतजार करते रहे थे 120 लोग। इंतजारी की घड़ी समाप्त हो गई। वो नहीं जानते थे कि कब पवित्र आत्मा उतरेगा, केवल इंतजार और प्रार्थना कर रहे थे। हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, वो उनका टाइम था, उन्होंने इंतजार किया। They just waited all together in one accord, in one place, in oneness, that is in unity. अजीजों, एकता में बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। एकता के अंदर मैंने कहा बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस एकता में ही हमेशा की आशीष है, सदा के जीवन की आशीष इस एकता में है। आपको याद है दाऊद को प्रकाशनता भजन 133 में वो कहता है, क्या ही मनोहर भरी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, क्योंकि ये जो मेल मिलाप है, ये जो यूनिटी है, इसमें वो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया, दाढ़ी से बहकर वस्त्र की छोर तक चला गया। और ये ऑयल ब्लेसिंग, ये होली स्पिरिट को दर्शाता है। आपको मालूम यूनिटी में इतनी पावर है कि यहोवा जहां पर यूनिटी है वहीं पर आता है। उत्पत्ति 11 अध्याय में फादर केम, अगर आप उसे पढ़ें उत्पत्ति 11:7 को, तो यहोवा परमेश्वर को उतरना पड़ गया, क्योंकि लोगों में एक ही भाषा थी, यूनिटी थी। यीशु ने कहा मत्ती 18:20 के अंदर, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं आ जाऊंगा। सन आ जाता है। आज पवित्र आत्मा आया है। आज भी यूनिटी है कि वो एक मन, एक चित्त थे, एक जगह इकट्ठे थे। दे आर इन वन प्लेस, इन वननेस, ऑल टुगेदर, इन वन अकॉर्ड। और वहां पर त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति आता है। हालेलुया। आइजाया को ये प्रकाशन था। वो कहता है यशाया 64 अध्याय के 1 पद में, भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए। अजीजों, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आकाश को फाड़ कर उतर आया। और जब कोई चीज आकाश से नीचे धरती पर गिरती है अजीजों, कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। आए दिन हम सुनते हैं, कई बार कोई एरोप्लेन क्रैश होकर गिर जाता है, कोई बम्बार्डमेंट होती है, बम गिराया जाता है, सृष्टि पर उसका असर पड़ता है। और यहां पर तो तीसरे आकाश से कोई धरती पर उतर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होना था। बाइबिल कहती है कि बड़ी आंधी का शब्द हुआ, बड़ी आंधी की सनसनाहट हुई, रशिंग माइटी विंड। दूसरा बात क्या हुई कि सनसनाहट का शब्द हुआ, साउंड फ्रॉम द हेवन। तीसरी बात क्या हुई कि सारा घर गूंज गया। द हाउस वेयर दे आर सीटेड फिल्ड विद द हैवी साउंड। आग की सी जीभें आई, टंग्स ऑफ फायर केम। डिफरेंट टंग्स में वो लोग बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। और अच्छी बात यह हुई, ऑल वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, सब।
120 के 120 पवित्र आत्मा से भर गए। आपको मालूम, असल में हकीकत में आज के दिन या वो पेंटिकॉस्ट के डे जब हिस्ट्री चेंज हो रही थी, जब पवित्र आत्मा नीचे उतरा, हकीकत में क्या हुआ? डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? डोंट गो टू द मैनिफेस्टेशन। आप अपना घर मैनिफेस्टेशन के ऊपर ना बनाएं। डोंट एक्सॉल्ट द मैनिफेस्टेशन कि जी आग की लपटें आ गई, आंधी का शब्द हुआ, तेज सनसनाहट का शब्द हुआ, है वो जगह गूंज गई, आज भी वैसा होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। हो भी सकता है। मेरे पास 4-5 इस प्रकार के अनुभव हैं। एक बार हम मेरठ में कैथोलिक सरदना में होली स्पिरिट पे टीचिंग दे रहे थे। लास्ट डे जब मैं टीचिंग दे रहा था, सेम घटना घट गई। एक बार हमारे यहाँ स्कूल चल रहा था मना हाउस में, पॉलीगंज मेरे घर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है। वहां स्कूल की छुट्टियां थी, स्कूल का रिट्रीट हो रहा था और वहां के फादर ने मुझे इनवाइट किया, ब्रदर पुरी कम, एक एटलीस्ट एक सेशन आप ले लें। मैंने होली स्पिरिट का सेशन लिया और वहां सेम एग्जैक्टली हो गया। ये उथल पुथल इतनी हुई कि मेज कुर्सियां उलट पुलट हो गई, दरवाजे खिड़कियां हिल गए। मैं नेपाल में था, छोटे से ग्रुप के अंदर ऐसा पवित्र आत्मा उतरा तो एक भी व्यक्ति जमीन पर गिरे बिना नहीं रह सका। सब जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। अन्य जातियां सब तरफ से आके घेर लिया उस जगह को। सब बिल्कुल डिफरेंट, मतलब आप इंसानी सोच से हटकर चीजें होने लगी। ये प्रभु की मर्जी है, वो किस प्रकार का प्रकटीकरण करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने पिछले संडे किया वो इस संडे भी करेंगे, और जो इस संडे किया वो अगले संडे करेंगे। नॉट नेसेसरी। So don't exalt the manifestation, don't exalt the experience. If you want to really exalt the Jesus who is alive, who is risen from the dead. Exalt his word. लेकिन मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, आपको मालूम पेंटिकॉस्ट डे के दिन हुआ क्या? ये सब चीजें तो प्रकटीकरण की थी, हकीकत में हुआ क्या? जानना चाहते हैं? सुने हकीकत में क्या हुआ। हकीकत में God himself in the shape of Holy Spirit came upon 120 people. त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति 120 लोगों के अंदर समा गया हमेशा के लिए। परमेश्वर वो जो बाहर था 120 लोगों के अंदर आ गया। possessor of heaven and earth, creator of heaven and earth, creator came in creation. मनुष्य की देह में, मनुष्य के शरीर में, उसके बॉडी के अंदर स्वयं परमेश्वर आत्मा के रूप में उतर जाता है। मनुष्य का शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन जाता है। परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, वो मनुष्य का शरीर बन जाता है। कैन यू इमेजिन? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? God himself lives in the man. मैं एक लाइन में कहूं, स्वर्ग का खजाना मट्टी के बर्तन में। हालेलुया। अजीजो, हिस्ट्री चेंज हो गई। आज के दिन हिस्ट्री चेंज हो गई। खुश हो जाएं, ताली बजाएं, मुस्कुराएं। सुने, अब ईडन गार्डन में जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति आदम को छोड़ गई, उस दिन आदम फ्लैश प्लस सोल में रह गया। God separated from Adam. और पेंटिकॉस्ट के डे के दिन तक, आज के 2020 कैलेंडर के अनुसार अगर मैं कहूं या यूं कहूं, आज 31 मई को अगर पवित्र आत्मा उतरा था तो यानी 30 मई तक आदम और आदम से पैदा हुए होल जेनरेशन, होल ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, ह्यूमन रेस फ्लैश प्लस सोल में ही थे।
लेकिन ऐतिहासिक चेंजेस क्या आई? जब पवित्र आत्मा उतरा, जब परमेश्वर आत्मा के रूप में उतरा, उनके अंदर समाया, तो यही पर आदम, ये 120 लोग फ्लैश प्लस सोल में नहीं, बट दे आर नाउ फ्लैश प्लस सोल प्लस स्पिरिट बन गए। एक तरफ इस दिन से पहले की जनरेशन और एक तरफ इस दिन और इस दिन के बाद की जनरेशन में डिफरेंस देखिए। पहले आदम से सब जो पैदा हो रहे थे सब फ्लैश और सोल थे, और आज की तारीख के बाद सब कैसे हो गए? फ्लैश प्लस सोल प्लस स्पिरिट। पहले आदम बॉडी और सोल में है, आज आदम बॉडी, सोल एंड स्पिरिट में है। व्हाट अ चेंज! कितना बड़ा महान बदलाव! मैं इस बात का प्रकाशन आपको देना चाहता हूं कि उस दिन तक, यानी कल के दिन तक, 49वें दिन तक आदम विदाउट गॉड, आदम से पैदा हो रही जनरेशन विदाउट गॉड, विदाउट होप। इफिसियों 2:12 में लिखा है कि हम सब जब पैदा हुए ईश्वर रहित और आशा रहित थे। लेकिन पेंटिकॉस्ट डे से, आज के दिन से जब पवित्र आत्मा उतरा, तो हम लोग बदलाव, हमारे अंदर बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया? जब आप फ्लैश और सोल में होते हैं, यू आर सिंपली मैन, सिंपली यू आर इन फर्स्ट एडम। लेकिन जब आप स्पिरिट सोल बॉडी में होते हैं तो यू आर इन सेकंड एडम, यू आर इन द लास्ट एडम। जब आप फ्लैश और सोल में होते हैं, यू आर नथिंग, यू आर ऑर्डिनरी। लेकिन जब आप फ्लैश, सोल एंड स्पिरिट में हो जाते हैं, यू आर समथिंग, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब आप फ्लैश और सोल में होते हैं, यू आर विदाउट गॉड। लेकिन जब आप फ्लैश प्लस सोल प्लस स्पिरिट में होते हैं, यू आर मिनी गॉड। देयर इज ए डिफरेंस। फ्लैश प्लस सोल फर्स्ट एडम में है, यू आर नेचुरल। जब सेकंड एडम में है, फ्लैश प्लस सोल प्लस स्पिरिट, यू आर सुपर नेचुरल। आप जब फर्स्ट एडम में है, यू आर विदाउट गॉड। जब आप सेकेंड एडम में, यू आर विद गॉड। गॉड इज इनसाइड ऑफ यू। पहले एक्सपीरियंस में परमेश्वर बाहर है, दूसरे एक्सपीरियंस में परमेश्वर आपके अंदर है। पहले एक्सपीरियंस में यू आर आउट ऑफ द फैमिली ऑफ गॉड, सेकेंड एक्सपीरियंस में यू आर द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ गॉड। इनफैक्ट यू आर द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। अगर आप फ्लैश और सोल में हैं, यू आर कंडेम, आप पर दंड की आज्ञा है। लेकिन आप जब आप स्पिरिट के साथ आ जाते हैं, देन बाइबल कहती है नो कंडमनेशन। आप मसीह के संग हो जाते हैं, मसीह में हो जाते हैं। पहले आप मसीह से बाहर हैं, अब आप मसीह में हो जाते हैं। जब आप पहले आदम में होते हैं, यू आर नोन एज जेंटाइल, आप सीकर होते हैं, खोजी होते हैं। लेकिन जब आत्मा आपके साथ जुड़ती है, तब आप बिलीवर होते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। जब आप फ्लैश और सोल में होते हैं, आप नरक की राह पर होते हैं। और जब आप आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप स्वर्ग की राह पे आ जाते हैं। इनफैक्ट स्वर्ग आपके अंदर आ जाता है। जब आप फ्लैश सोल में होते हैं, देन नो रिलेशनशिप, नो फेलोशिप विद द लिविंग गॉड। लेकिन जब आपके साथ स्पिरिट में कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप खुद मिनी गॉड हो जाते हैं। स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, कनेक्शन स्थापित होता है। इसलिए कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो क्लोजनेस आती है, क्लोजनेस आती है तो आप कम्युनियन शुरू करते हैं, आप वननेस में आते हैं। यू ज्वाइन विद द लॉर्ड, एंड हु ज्वाइन विद द लॉर्ड, ही इज द वन स्पिरिट विद हिम। बाइबल कहती है जो प्रभु की संगति में रहता है, वो एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। आप नई सृष्टि बन जाते हैं। यू आर ए ब्रांड न्यू पर्सन, अ न्यू क्रिएशन। यू कैन वर्शिप एनीवेयर, एनी टाइम, इन स्पिरिट, इन ट्रूथ। यू आर ए ट्रू वर्शिपर। गॉड इज सीकिंग द ट्रू वर्शिपर। और तब परमेश्वर जो उस दिन उदास बैठा था, वो देख रहा था लूसीफर एंड पार्टी को नीचे फेंक दिया गया है, वो सारी जगह खाली है। तो परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो उसका भजन आत्मा सच्चाई से कर रहे हैं।
वो मिस्ट्री चेंज हो जाती है। सदियों से जो गुप्त ज्ञान बना हुआ था, वो गुप्त, वो भेद की बात ओपन हो जाती है। बाइबल कहती है कि आप वो रहस्य जो सदियों से गुप्त था, वो रहस्य नहीं रहता। आप का शरीर प्रभु की आत्मा का मंदिर बनता है। होप ऑफ ग्लोरी आपके अंदर आती है। आप परमेश्वर में, परमेश्वर आप में आ जाता है। आमीन। कुलुसियों 1:27 में लिखा है, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम्हारे अंदर वास करता है। मैं मसीह में, मसीह मुझ में। ये घटना प्रेरित 2:1-4 में हुई। अभी मेरा संदेश खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेरा संदेश अब शुरू हो रहा है कि जब पवित्र आत्मा आ गया, अब आप फर्स्ट एडम में नहीं, सेकेंड एडम में हो गए। स्पिरिट से स्पिरिट का कनेक्शन हो गया। आपको मालूम, आज का दिन पेंटिकॉस्ट डे करके लोग मनाते थे और सब लोग यरूशलेम में इकट्ठे होते थे। कई जातियां आती थीं, कई राष्ट्रों के लोग इकट्ठे होते थे। बाइबल में लिखा हुआ है, पार्थी, मेदी, एलामी, मोसोपोटिया, यहूदिया, कप्पुदिकिया, पुंतुस, आसिया, फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र, लीबिया, कुरेने, क्रेते, यहां तक कि अरबी लोग, सब जगह जगह के लोग आए हुए इकट्ठे थे। और जब पवित्र आत्मा उनके अंदर समा गया, उन्हें एक नई भाषा दे दी। वे अन्य भाषा में अर्थात आत्मा में वो लोग प्रार्थना करने लगे। तो सब लोग अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनने लगे। जब महान काम होता है तो विरोध भी होता है। कई लोग वहां पर विरोधी भी थे। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, और उन्होंने तुरंत कमेंट पास करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि ठट्ठा करके कहने लगे, ये तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। अरे लगता है इन्होंने दारू पी ली है, शराब पी ली है। अजीजों, जो पतरस डर के मारे ये लोग बंद कमरे में इंतजारी में बैठे थे, होली स्पिरिट जब उनके अंदर आ गया तब पतरस के अंदर बोल्डनेस आ गई। तब पतरस, बाइबल कहती है कि वो 11 लोगों के साथ खड़ा हो गया और ऊंचे शब्द से कहने लगा। उसकी आवाज ऊंचे शब्द से अब आने लगी। पहले इतनी आवाज नहीं आ रही थी। शाउटिंग वे में बोलने लगा और उसने चिल्लाकर कहना शुरू किया, ऊंचे शब्द से कहना शुरू किया, कान लगाकर मेरी बात सुनो। लिसन, आई एम गोइंग टू स्पीक द ट्रूथ। मैं तुम्हें सच्चाई बताने जा रहा हूं। ये क्या बात है? ये नशे की बात नहीं है। अजीजों, पवित्र आत्मा आ चुका था। यीशु ने कहा था जब पवित्र आत्मा आएगा वो सारी बातें याद दिलाएगा। पतरस को मालूम नहीं था योएल नबी की बातें क्या हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया तो उसने योएल नबी की बातें बोलना शुरू कर दी। उसने कहना शुरू किया, तुम लोग गलतफहमी में हो, ये नशे में नहीं है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। ये वो बात है जो परमेश्वर पिता ने योएल नबी के द्वारा कहलवाई थी कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल दूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दास दासियों पर अपनी आत्मा को उड़ेल दूंगा, वे भविष्यवाणी करने लगेंगे। और सुनो, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई में जो कोई, किसी भी जात का आदमी हो, धर्मी हो, कुकर्मी हो, पापी हो, अपराधी हो, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बच जाएगा, वो उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। जब उसने ये बात कही, उसके अंदर हियाव था। उसने यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने कहना शुरू किया कि परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण और सामर्थ्य के कामों के और आश्चर्य कामों और चिन्हों के द्वारा प्रकट हुए। और इस व्यक्ति ने परमेश्वर के कार्यों को प्रकट किया। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुम अधर्मियों ने अपने हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर उसे मार डाला। परंतु सुनो, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिंदा कर दिया, क्योंकि यह न होना था कि कोई उसे अपने वश में रख सकता था। तब पतरस और उसके साथी गवाही देते हैं प्रेरित 2 अध्याय के 32 पद में, यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं।
हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबा लाहाबा शिकोरोबा, ये लिखा हुआ है। जो पतरस ने डिक्लेयर किया कि हम गवाह हैं इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। अभी जब यीशु मसीह मरकर जिंदा हो गए, जब आकाश में उठा लिए गए, स्वर्ग में जब एंट्री कर रहे थे, स्वर्ग में हुल्लड़ मच रहा था, खुशियां हो रही थी, आनंद मनाया जा रहा था, स्तुति हो रही थी, आराधना हो रही थी। पिता को मालूम था मिशन कामयाब हो गया है, मेरा बेटा विजयी होकर लौटा है। नगाड़े बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, हालेलुया के नारे लग रहे थे। अजीजों, स्वर्ग में शांति नहीं है। धर्मी के घर से जय जयकार की आवाज निकलेगी, बाइबल कहती है। स्वर्ग में शांति नहीं है। स्वर्ग में, आपकी भाषा में कहूं, हुल्लड़ हो रहा है। अगर शांति की जरूरत है तो शांति आपको कब्रिस्तान में मिलेगी, ग्रेवयार्ड में लाइन से बेड लगे हुए हैं, हर एक में लिखा है RIP, रेस्ट इन पीस। लेकिन स्वर्ग में हुल्लड़ हो रहा है, खुशियां हो रही हैं, आराधना हो रही है। और यीशु मसीह स्वर्ग में एंटर किए और स्वर्ग के द्वार पर वो रुक गए। सारी स्वर्ग की सेना, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत यीशु के स्वागत में खड़ी हुई है। पिता खुद सिंहासन से खड़े हो गए हैं, पवित्र आत्मा सिंहासन से खड़े हो गए हैं और यीशु मसीह द्वार पे खड़े हैं। पिता अपनी बाहें फैलाता है और पिता कहता है, बेटे आ। लेकिन यीशु मसीह वहां खड़े रहते हैं और जय जयकार की आवाज चल रही है। यीशु मसीह कहते हैं, पिता कहते हैं, बेटे तूने मेरे आनंद को पूरा किया है, तूने मेरे मिशन को कामयाब कर दिया है, तूने मानव जाति को बचा लिया है, तूने फिर से मानव जाति का मेरे से मेल करा दिया है। मैं उसमें और वो मुझ में है। तेरा मैं धन्यवाद करता हूं। आ और मैं तुझे रिवार्ड देता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू रिवार्ड। मैं तुझे इनाम देता हूं। पहला इनाम, आज से तू मेरे बगल में, मेरे दाहिने इस सिंहासन पर तू बैठेगा और सब कुछ मैंने तेरे पांव के तले कर दिया है। सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मैं तुझे हैंडओवर कर रहा हूं। तेरे ही नाम से पापों की क्षमा उपलब्ध रहेगी। आ और तू इस सिंहासन पर बैठ और तू न्याय कर। यीशु मसीह खड़े रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम और आप होते तो दौड़ के जाके बैठ जाते। पिता ने कहा, मैं तुझे दूसरा गिफ्ट भी देना चाहता हूं। सुन, मैं तुझे वो नाम देता हूं, एक नया नाम जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ होगा। स्वर्ग में, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे, तीनों लोगों के लोग तेरे उस नए सर्वश्रेष्ठ नाम के आगे घुटने टेकेंगे और तेरे उस नाम को अंगीकार करके कहेंगे कि यीशु मेरा प्रभु है। जब तक वो अंगीकार नहीं करेंगे, मेरी महिमा नहीं कर पाएंगे। पिता की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। मैं तुझे ये नया नाम देता हूं। आपको याद है प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में संत पतरस कहते हैं 36वें वचन में कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। आज से तेरा नया नाम होगा प्रभु यीशु मसीह। मीन्स फादर, सन एंड होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह। आ और बैठ। अजीजों, यीशु मसीह फिर भी आकर नहीं बैठे। सब लोग साइलेंट हो गए। क्या बात? पिता भी सोचने लगा, क्या बात बेटे, तू आता क्यों नहीं, बैठता क्यों नहीं? मैंने तुझे इतने अच्छे 2 गिफ्ट दिए, रिवार्ड दिए हैं।
यीशु ने कहा, पिता, क्या मैंने आपके आनंद को पूरा किया है? क्या मैंने मिशन कामयाब कर दिया है? अगर आपकी इच्छा मैंने पूरी कर दी, आपका आनंद पूरा कर दिया है, मिशन कामयाब कर दिया है, और रियली आप मुझसे खुश हैं, तो मुझे एक गिफ्ट और चाहिए। जब बाप खुश हो तो गिफ्ट मांगो, मिल जाएगा। यीशु ने कहा, मुझे एक प्रॉमिस और कीजिए, आई वॉन्ट वन मोर रिवॉर्ड। अगर आप वो देते हैं तब मैं ये 2 रिवॉर्ड लूंगा। बाप खुश था। पिता ने कहा, बेटे डन, दिया, बोल क्या गिफ्ट चाहिए। तब यीशु मसीह ने पिता के बगल में खड़े पवित्र आत्मा की ओर उंगली उठाई वहीं से और कहा, पिता, याद कर, जब तूने मुझे इस धरती पर भेजा था तब तूने इस पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर उतारा था, और मैं और ये दोनों ने मिलकर 3.5 साल तक सेवा की और तेरे उस पूरे मिशन को कामयाब किया। मैंने इस धरती पर रह के देख लिया है, बगैर पवित्र आत्मा के जीना नामुमकिन है। बगैर पवित्र आत्मा के कोई तेरा कार्य करना बिल्कुल असंभव है। ना पवित्र आत्मा के बिना हम जी सकते हैं, ना ही पवित्र आत्मा के बिना हम कोई कार्य प्रभु की सेवा कर सकते हैं। सो पिता, जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जो कोई मेरे बलिदान में विश्वास करे, जो कोई मुझे स्वीकार करे, जो मेरे इस नाम के आगे झुके, ग्रहण करे, पिता मुझे वायदा कर कि तू अपनी इस आत्मा को उसके ऊपर उड़ेल देगा। पिता थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ा और धीरे से पिता फिर मुस्कुराया और पिता ने बेटे से कहा, डन बेटे, ये भी प्रॉमिस मैं तुझे देता हूं। और अब पिता ने होली स्पिरिट की ओर देखा और होली स्पिरिट को देखकर पिता मुस्कुराया और होली स्पिरिट से पिता ने कहा, होली स्पिरिट, तुझे अब जाना पड़ेगा। नाउ योर टर्न हैज कम, अब तेरी बारी आई है। एक टाइम था मेरी बारी आई थी, मैं गया था। एक टाइम आया था कि बेटा गया, अब तेरी बारी है, तू जा। और होली स्पिरिट वहां से चलता है। जैसे ही यीशु मसीह देखते हैं होली स्पिरिट चल रहा है नीचे उतरने के लिए, होली स्पिरिट स्वर्ग के उस द्वार से सिंहासन की ओर बढ़ते हैं और दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। जब तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से कहते हैं, हे होली स्पिरिट, मेरे सब विश्वासियों का ख्याल रखना। मैंने उनको वायदा किया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब मैं दोबारा बादलों पर आऊं तब तक तू उनके संग रहना, और मैं बादल पे आऊंगा और तू उन्हें बादल पे उठा के लाना और हम दोनों वहां पर फिर से मुलाकात करेंगे। और होली स्पिरिट यीशु को क्रॉस कर गया। होली स्पिरिट नीचे उतरा, यीशु मसीह आकर सिंहासन पर बैठ गए। इसलिए बाइबल कहती है प्रेरितों 2 अध्याय के 33 पद में, जब यीशु मसीह ने पिता से प्रतिज्ञा ले ली तब उस सर्वोच्च पद को, उस सिंहासन को हासिल किया और उस सिंहासन पर आकर बैठ गया। बाइबल कहती है पिता के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उड़ेल दिया जिसको तुम देखते और सुनते हो। तुम लोग नशे में सोच रहे हो उन्होंने शराब पी है? नहीं नहीं नहीं, तुम जो देख रहे हो और सुन रहे हो ये वो बात है जो यीशु मसीह ने पिता से प्रॉमिस लिया था। इसलिए पवित्र आत्मा का एक नाम है स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस। जब पिता से प्रतिज्ञा ले ली, यीशु मसीह सिंहासन पर बैठ गए, पवित्र आत्मा नीचे उतरा। वो 31 मई 2020 के कैलेंडर के हिसाब से आज का दिन था और वो पवित्र आत्मा नीचे उतर आया, परमेश्वर लोगों के अंदर समा गया। हालेलुया। और हम मिन्नी गार्ड बन गए। आमीन, आमीन, आमीन। और जब पतरस ने ये सारी बातें कही, बाइबल कहती है सुनने वालों के हृदय छिद गए और लोग दौड़ते हुए पतरस और शेष प्रेरितों के पास आए
और उनसे कहने लगे, पतरस भैया हम क्या करें, कुछ तो बताओ, अब हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू नाउ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें, तब तुम गिफ्ट पाओगे। वो गिफ्ट कौन सा? अरे दूसरा गिफ्ट तब मिलेगा, पहला गिफ्ट तो मैं था, यीशु मैं आया था, अब दूसरा गिफ्ट होली स्पिरिट तुम्हें मिल जाएगा। आज भी ये वचन बदला नहीं है। आज भी जो कोई पापों से क्षमा प्राप्त करता, मन फिराता है, यीशु का बपतिस्मा लेता है, होली स्पिरिट को प्राप्त कर जाता है। तब पतरस ने कहना शुरू किया कि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तब जिसने विश्वास किया, उसके वचनों को सुना, विश्वास किया, ग्रहण कर लिया, उन सब ने बपतिस्मा ले लिया और उस दिन 3000 मनुष्य सभा में आ गए, मनुष्यों के साथ मिल गए। कहने का अर्थ, पहला संदेश पवित्र आत्मा की भरपूरी में, पहला संदेश, पहले ही संदेश में 3000 लोग की कलीसिया स्थापित हो गई और सब के सब ने बपतिस्मा ले लिया था। इसलिए मैंने कहा आज के दिन चर्च का भी बर्थडे है और पवित्र आत्मा हमेशा के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आया, उसका भी जन्मदिन है। आज सेलिब्रेशन का दिन है, हम लोग प्रार्थना के टाइम पे सेलिब्रेट करेंगे। आपको समझ में आ रहा है आज के दिन कितनी बड़ी बात हुई, जो हमारी सोच से परे असंभव वाला काम संभव हो गया। क्या आप प्रार्थना में मेरे साथ चलेंगे? आइए, जो संदेश सुना है उस पर विश्वास करें और प्रभु पिता परमेश्वर से दुआ करें। अपने स्थानों पर खड़े हों, प्रार्थना के लिए हम तैयार हो जाएं। यदि आप बुजुर्ग हैं, आप बैठे रहें। खासतौर से जो जवान लोग हैं, मैं चाहूंगा वो खड़े हों। अगर आप परिवार के रूप में बैठ के सुन रहे हैं, आप खड़े हों। 2 लाइनें मेरे साथ गाएं। जब मैं गाता हूं, इन 2 लाइनों के द्वारा हम अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार करें। बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपना ध्यान
अपने अंदर लगाएं, इनसाइड ऑफ यू, अपने अंदर झांकें। पिता से कहें, पिता अपनी आत्मा मेरे ऊपर मैनिफेस्ट करें। फादर गिव मी योर होली स्पिरिट। विश्वास की प्रार्थना करें और विश्वास से यीशु से कहें, जीसस you are the baptizer of the Holy Spirit. Lord, here I am. Baptize me today. Holy Spirit से कहें, tell to the Holy Spirit, Holy Spirit, I welcome you. Please manifest yourself in me. I want to know you more and more. Holy Spirit से कहें, Holy Spirit, I will respect you. I will honor you. I will obey you. I love you, Holy Spirit. Rise in me. Move in me. Touch me. Touch me, Holy Spirit. Touch my spirit, soul, body. Reveal yourself to me. I praise you, Holy Spirit. I adore you, Holy Spirit. I worship you, Holy Spirit. You are the wonder of God. Please, Holy Spirit, make me like Jesus. यीशु का स्वभाव, यीशु का चरित्र मुझ में बना दे. I am in your authority, Holy Spirit. Coming totally under you, Lord. Holy Spirit, I dedicate my spirit, soul and body to you. Oh, Holy Spirit, I lend myself to you. Say it again and again. Holy Spirit, I lend myself to you. मैं जो हूँ अपने आप को तुझे देता हूँ. I lend myself to you. प्रभु, मैं अपने आप को जीवित पवित्रता के साथ भावता हुआ तुझे बलिदान करता हूँ. I dedicate myself to you, Holy Spirit. Brother and sister, don't be silent. Speak, speak, speak it. Tell him, I lend myself to you. This is your time. It's your day. Your receiving day. This is your miracle day. Your turn has come. Receive, Holy Spirit. I release the presence of Holy Spirit upon you. I release the anointing of the Holy Spirit upon you. Be filled with the Holy Spirit. Be filled. Be filled. Pray, 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 pray. Praise Him, praise Him, praise Him. Pray in tongues. राबालीना हकेबेरा. आत्मा में विनती करें, आत्मा में प्रार्थना करें. शखो रोदो लोलोबो शिबेरे देलेलेबे. Don't stop, don't stop. Continue, continue. Start, 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 start. Holy Spirit will take over you. Don't feel shy. Speak in tongues, speak in tongues. Oh, Holy Spirit, manifest, manifest upon them, Lord. Oh, manifest yourself to them, Holy Spirit. Holy Spirit, you manifest, manifest the Spirit of the Lord. Holy Spirit is the wisdom of God. Holy Spirit is the Spirit of understanding. Holy Spirit is the Spirit of counsel. Holy Spirit is the Spirit of might. Holy Spirit is the Spirit of knowledge. Holy Spirit is the Spirit of the fear of the Lord. Lord, manifest all the seven spirits. Lord, I pray in the name of Jesus. Father, Daddy, Abba Father, I pray you. Lord, you fulfill your promise upon them. Let the Comforter come upon them. Holy Spirit, you are the Comforter. You are the Counselor. You are the Helper. You are the Advocate. You are the Strengthener. You are the Intercessor. You stand by us, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Rabala Handari Delehenibi Shikere Delebe Shivara. Lord, thank you for touching. Thank you for touching. Thank you, 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 Holy Spirit, for touching them. Receive by faith.
Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Say, Lord, I receive in Jesus' name. Say it again, receive. Lord, I receive by faith in Jesus' name. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. In Jesus' glorious name, Amen, Amen, and Amen. May the Lord bless you. अब आप शरीर और प्राण नहीं हैं, आप शरीर, प्राण, आत्मा में हैं। जो मसीह में है वो आत्मा के चलाए चलता है, और जो आत्मा के चलाए चलता है उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। जब मसीह का आत्मा तुम में है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तब तुम आत्मिक दशा में हो, क्योंकि मसीह का आत्मा तुम में है। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। याद रखना मेरे अजीजों, ये बात कह के मैं समाप्त कर रहा हूं। रोमियो 8 अध्याय 11 पद में लिखा है, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। रोज अंगीकार करें, आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आई एम ए स्पिरिट मैन। यीशु का आत्मा मुझ में है, परमेश्वर की आत्मा जो जीवन की आत्मा है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो जीवन की आत्मा मुझ में रहती है। मैं आत्मा के चलाए चलता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु जी का अनुग्रह है, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबके साथ बनी